Hello dear students. In chemistry, what we are studying, coordination compound. As always, same complaint for you. Not a single person is responsive for my lecture. Okay, I don't know why you are watching the whole lectures or not. I don't know. I hope you respond about anything like सर इसमें डाउट है, ओके इसमें प्रॉब्लम है, ये हमने सॉल्व किया है, ये हमने एक्सरसाइज लिखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन शॉर्ट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव and you are not that much serious about your study. I think so. Okay, so you have to learn properly. This chapter is very much important for your competitive examination also, for your board examination also. So you have to study about that properly. Okay, in last lecture what I taught you, I taught you about IUPAC nomenclature of coordination compound. What? IUPAC nomenclature of coordination compound. Fine. Now today I am going to teach you VBT. Today I am going to teach you what? VBT. VBT means valence bond theory. What it indicates? That is a valence bond. It means here it is dative bond. Dative bond means coordinated covalent bond between metal and ligand. Ligand transfers its electron pair towards metal and creates coordinate covalent bond. And because of this, there is a different hybridization and shape are observed in different coordinate compound. Okay. Today we are going to study about different hybridization of coordinate compound. First of all, if there is sp3 hybridization, it means 1s and 3p, from which NS and NP. It means 4 hybrid orbitals are prepared by using NS orbital and NP orbital. This is if we are talking about first transition series. अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सी सीरीज ऑर्बिटल यूज होगी? 4s and 4p. ओके, उसकी वजह से क्या बनेगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और उसकी वजह से होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल इज 109 degree 28 minutes and if coordination number is 4, then there is a possibility of sp3 hybridization. Okay, and normally if it is not considered always, but if there is a weak ligand or weak field ligand is present, then there is sp3 hybridization for coordination compound 4. Clear? Shape, metal, ligand, 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 ligand. What this arrow indicates? It indicates there is a coordinate covalent bond. Now the second hybridization is dsp2. 1d, 1s and 2p. D from n minus 1d, s from ns, p for np. It means if you are talking about first transition series, 3d, 4s and 4p. अगर हम दूसरी ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करें तो कौन सी ऑर्बिटल यूज होगी? 4d, 5s and 5p.
डी के कितने टाइप है? 5 टाइप है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होगी? डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। ओके, कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई? 1 1 2 यानी कि 4। इट मींस देयर इज अ 4 hybrid orbital, and for this structure is square planet. Bond angle is 90 degree and its coordination number of coordinate compound is 4. Then there is a possibility of dsp2 hybridization, and mainly if it is strong field ligand. If it is strong field ligand, then there is a possibility of what? dsp2 hybridization. About what? dsp2 hybridization. Okay, now next one. sp3d2 hybridization. Sorry, shape, metal, ligand, okay, square planet. Next, sp3d2 hybridization. 1s 3p and 2d. S from ns, p from np, d from nd. For first transition series 4s 4p 4p. दूसरी ट्रांजिशन सीरीज के लिए 5s 5p 5d ऑर्बिटल यूज होगी। कितनी यूज हुई? 1 3 2 यानी कि 6. इट मींस देयर इज अ 6 hybrid orbital. Shape is octahedral. Bond angle is 90 degree. Coordination number is 6. But यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो कौन सी यूज होगी? डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, बोथ। अगर आपको पूछा जाए कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है, डी ऑर्बिटल कौन सी यूज होती है, तो आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर यूज होती है। ओके, अगेन इसको डायरेक्ट sp3d2 बोलने की जगह वो लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दे कैन कॉल इट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। The reason being that if there is sp3d2 hybridization, spin value of that metal ion should be high. Okay, कैसे होगा वो आगे हम एग्जांपल देखेंगे, वहां पे पता चल जाएगा। Another thing, it is outer orbital complex. Why it is outer orbital complex? क्योंकि बाहर की जो ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर की जो nd ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होती है। उसकी वजह से उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। उसका भी एग्जांपल आगे आएगा। शेप क्या होगा? मेटल, लिगेंड, 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 लिगेंड। ओके, नेक्स्ट वन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 2d 1s and 3p orbital. Which d? n-1d, ns and p. यानी कि अगर हम पहली ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करें तो कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होगी? 3d 4s and 4p. 3d 4s and 4p. टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हुई? 6 hybrid orbital. Shape is
octahedral 90 degree, coordination number should be 6. Normally for strong ligand it is for weak ligand. ओके यहाँ पे भी कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होगी, dx² y² एंड dz². ओके लेकिन इसमें जो अंदर वाली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, 4th. आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4, लेकिन उसका अंदर वाली जो ऑर्बिट है 3, उसकी डी ऑर्बिटल यूज हो रही है. उसकी वजह से इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है. तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि नीचे दिए गए में से कौन सा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. वो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. व्हाट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्लियर, क्योंकि वहां पे स्पिन वैल्यू कैसी होगी, कम होगी. इसके अलावा sp, sp2, sp3d, dsp3 ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है. शेप में लीनियर, ट्राइगोनल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे शेप भी पॉसिबल है. लेकिन मेनली आपको एग्जाम में कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. उसकी वजह से हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाउ आपके लिए एक नया यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हम पढ़ेंगे CFT के बाद, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी के बाद. उसके लिए आपको दी जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या दी जाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लेकिन अभी तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको लर्न करना पड़ेगा. मैं आपको छोटी सी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि CO is greater than Cn minus is greater than ammonia is greater than H2O is greater than Cl minus is greater than F minus. तो यहां तक नॉर्मली आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, यहां पे लेना है वीक फील्ड लिगेंड WFL. और दूसरा क्या याद रखना, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रीअरेंजमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि कार्बोनिल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड or F minus is always weak field ligand. The strength of ligand is dependent on so many factors. Okay, first of all the spectrochemical series, after that shape of that coordinate compound, after that charge of that coordinate compound, and transition series. So many factors affect the strength of ligand. So for the few examples you have to learn that it is a strong field ligand, it is a weak field ligand. If there is weak field ligand, they cannot rearrange anti-electron. If it is strong field ligand, they can rearrange unpaired electron. Okay, or they can make new electronic configuration. Another thing, for you have to study this spectrochemical series mainly for first transition series. If there is any element or if there is any other metal ion which is from second transition series or third transition series, mainly all that ligands behave as a strong field ligand. Okay, now I am going to teach you first example, और उसमें हम जो wrong है वो भी पढ़ेंगे और क्या right है वो भी पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद मैं आपको यही वैसे ही एग्जांपल पढ़ाऊंगा जो सिर्फ राइट है. लेट्स सी,
जब मैंने आपको वर्नर्स थियरी पढ़ाई तब मैंने आपको ऐसा बोला था कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जानना बहुत ही जरूरी है। वो शायद आपको याद होगा। हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं NiCl4-2। इट मींस टेट्राक्लोराइड हो, निकलेट 2 आयन। फाइन, यहाँ पे क्या है, निकल है। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कंप्लीट 3d एट 4s2। नाउ दूसरा क्या है, Na+2, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कंप्लीट 3d एट 4s0 4p0। If we think that Cl- is a weak field ligand, 3d8 it cannot rearrange unpaired electron। वो अनपाई इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज नहीं कर सकता। अभी Cl- क्या है, लिगेंड, इट विल डोनेट्स लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करनी है तो ये ऑर्बिटल काम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है। अगर उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं तो उनको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो यहाँ पे कितने क्लोरीन आपको रखने हैं, 4। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। Cl-, कौन यूज हुआ, एक S 3p। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अनदर थिंग, there is unpaired electrons are present। तो for unpaired electron it is paramagnetic in nature। to calculate mu means magnetic momentum। उसका इक्वेशन क्या है, अंडर रूट n+2 where is Bohr magneton is a unit। n means number of unpaired electron। यहाँ पे unpaired electron कितने हैं, 2। then mu should be under root 2 multiplied by 2 plus 2 is equal to under root 8 Bohr magneton। It is the first possibility। It is the first possibility that there should be a sp3 hybridization in NiCl4-2। But if Cl- act as a strong field ligand and rearrange all unpaired electron। वो क्या करता है, ऑल अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे ला देता है। तो क्या होगा, Na+2 आर्गन कंप्लीट 3d8 4s0 4p0। 3d8 में रीअरेंजमेंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p। कितने Cl- आपको रखने हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 Cl-, Ni+2 क्या बन गया, NiCl4-2। अभी कौन यूज होगा, एक D, एक S और 2 P। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, DsP2 होगा। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। Another thing, all electrons are paired। If all electrons are paired, they are diamagnetic। They are diamagnetic in nature, as well as mu for that compound
for that compound is 0 Bohr magnetic. This is second possibility. This one is first possibility. This one is second possibility. According to this, dipole momentum is under root 8 Bohr magneton. According to this, dipole momentum should be 0 Bohr magneton. Okay. लेकिन हमने आपको क्या बोला था कि वर्नर की थियरी के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी कंपाउंड का परफेक्टली शेप जानना है तो आपको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, इस दोनों कंपाउंड पॉसिबल है, sp3 भी पॉसिबल है, dsp2 भी पॉसिबल है, लेकिन इस कंपाउंड के लिए हमने प्रैक्टिकली फाइंड किया कि वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। वो क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि प्रैक्टिकली हमने वो प्रूव किया कि NiCl4-2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फिर उसका जो भी मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसमें सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि Cl- वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। It cannot act as a strong field ligand in NiCl4-2। यहाँ पे मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी पढ़े और उसके मैंने आपको पढ़ा है कि प्रैक्टिकली तो यही सच समझ में आया। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि Cl- is a weak field ligand. It cannot rearrange unpaired electron. It cannot rearrange unpaired electron. It is clear? तो अभी हम इसके बाद जो भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकली ट्रू है, उसके भी जो भी रीजन है वो भी आपको पढ़ाते जाऊंगा। और जब भी हम क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अभी यही सही है, सिर्फ ये रॉन्ग है। क्लियर? आगे देखते हैं। NiCN4-2 यानी कि टेट्रा साइनो निकलेट 2 ion. Now we all know that Cn- act as a strong field ligand. Rearrangement is possible. Okay, now यहाँ पे भी क्या है? Ni+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? R1 कंप्लीट 3d8 4s0 4p0, बट डायरेक्टली रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो 3d8 में हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 4s और 4p। तो यहाँ पे क्या है? 1Cn-, second Cn-, third Cn-, fourth Cn-, 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 क्या यूज हुआ? 1d 1s एंड 2p। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नॉट ऑलवेज, अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो सारे एलिमेंट जितने भी लिगेंड है वो कैसे एक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ही होगा। फाइन, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लानर, बॉन्ड एंगल हुआ 90 डिग्री, और डायमैग्नेटिक इन नेचर, एंड म्यू इज
zero Bohrmann ion. Clear? Now, like NiCO4. Tetracarbonyl nickel, zero. Tetracarbonyl nickel, zero. Now we all know that carbonyl is a strong field ligand. ओके, लेकिन Ni जीरो है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? R1 कंप्लीट, 3d8, 4s0, सॉरी 4p2, 4s2, 4p0, 4d, 3d8, 4s, 4p, 4d. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. अगर कार्बोनिल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हाइब्रिडाइज कंपाउंड क्रिएट करना है, यानी कि NiCO4 प्रिपेयर करना है, कार्बोनिल को उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, किसको? निकल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हाइब्रिडाइज कंपाउंड क्रिएट करना है, तो उनको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक कार्बोनिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या होगा? P3D हाइब्रिडाइजेशन होगा. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? P3D. आपने कभी ऐसा पढ़ा P3D? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट में लिख लेना. इन NiCO4 carbonyl act as a strong field ligand, and because of it is strong field ligand, it is they rearrange 4s electron into 3d orbital. They rearrange 4s electron into 3d orbital, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और अभी निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? R1 कंप्लीट, 3d10, 4s0, 4p0, 3d में क्या हो गया? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4s और ये 4, क्या हो गया? 1 2 3 4, क्या यूज हुआ? 1s 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह Cn- ने बिहेव किया, फिर भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ. यहाँ पे कार्बोनिल ने स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव किया, फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ. यानी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी कोई लिगेंड आता है तो वो मेटल आयन को क्या डोनेट करता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. और जब भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा गया तो मेटल आयन के पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए. तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल लेने के लिए अगर वो उसमें कुछ रीअरेंजमेंट करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल लेने के लिए उसमें कुछ रीअरेंजमेंट करता है, तो वो कैसे बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव किया, फिर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3, क्योंकि आगे कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं थी, पूरी खाली नहीं थी. समझ में आया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये क्या हुआ? टेट्राहेड्रल शेप, 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल, not a single unpaired electron, diamagnetic in nature, and mu is 0 Bohr. क्लियर? इसी तरह आपको क्या ट्राई करना है? NaCO4 मैंने आपको करवाया, आपको घर पे ट्राई करना है FeCO5 और CrCO6. क्या ट्राई करना है? CrCO6. ओके, फाइन. वी आर गोइंग टू स्टडी योर नेक्स्ट एग्जांपल. सी. FeCN6 -4 क्या नाम होगा? हेक्सा
cyanoferrate 2 ion. Hexacyanoferrate 2 ion. Now Fe plus 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन R1 कंप्लीट 3d6 4s0 4p0. क्यों? Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R1 कंप्लीट 3d6 4s2. याद रखना है कभी भी d ऑर्बिटल की या फिर d ब्लॉक कंपाउंड है, d ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ns में से दूर होगा, उसके बाद n-1d में से. बहुत सारे बच्चे पहले d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, वो गलत है. पहले ns इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उसके बाद n-1d. अभी हमको पता है Cn- एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. पहले क्या है? 3d6 कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा. अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो क्या होगा? Fe plus 2 R1 कंप्लीट 3d6 4s0 4p0. 1 2 3 4 5 6 4s and 4p. ओके. एक Cn- दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. 2 D यूज हुए, एक S यूज हुआ, एक 3 P यूज हुए, तो क्या हो गया? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अभी आप ध्यान से देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो सब पैड हो गए. जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो सब क्या हो गए? पैर हो गए. उसकी वजह से इसकी स्पिन वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ, तो ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, तो ये माइनस हाफ. अगर ये प्लस हाफ तो ये फिर माइनस हाफ. तो टोटल स्पिन वैल्यू क्या आएगी? 0. टोटल स्पिन वैल्यू कितनी आएगी? 0. यानी कि हमें कैसा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. उसकी वजह से दूसरा क्या हुआ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट थी 4, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल कौन सी यूज हुई? 3 वाली. यानी कि जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल है, जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल है वो यूज हो रही है. उसकी वजह से इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इसको क्या बोला जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्लियर? अनदर थिंग क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल इन शेप, 90 डिग्री, diamagnetic in nature, and mu is 0 Bohr minimum. Okay, now same to same. FeF6 minus 4. FeF6 minus 4. क्या होगा? हेक्साफ्लोराइड ऑफ ferrate 2 ion. Now F minus is a weak field ligand. Rearrangement is not possible. Rearrangement is not possible. Now FeF6 minus 4, Fe plus 2 आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन R1 कंप्लीट 3d6 4s0 4p0 4d0. 3d6 4s 4p 4d. रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6. अभी ये सारी ऑर्बिटल F माइनस के लिए कोई भी काम में आने वाले नहीं है. क्यों? क्योंकि F माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसको पूरी एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. उसको क्या चाहिए? पूरी
एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। तो क्या यूज हुआ, एक S 3 P और D 2 sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ओके, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वीक फील्ड लिगेंड की तरह उसने बिहेव किया, उसकी वजह से पेयरिंग नहीं हुआ। पेयरिंग नहीं हुआ तो इसकी स्पिन वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस हाफ, इसकी वैल्यू प्लस और माइनस हाफ, इसकी वैल्यू भी प्लस और माइनस हाफ, इसकी वैल्यू भी प्लस और माइनस हाफ आएगी। तो टोटल स्पिन वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 2। दोनों में Fe+2 ही था, लेकिन जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्पिन वैल्यू आपको कम मिली, उसकी वजह से आपने उसको बोला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड था या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्पिन वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, उसकी वजह से sp3d2 का नाम हमने दूसरा क्या दिया था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां पे रीअरेंजमेंट हुई, उसकी वजह से जो इंटरनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 थी, आउटर ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल यूज नहीं हुई, इंटरनल जो ऑर्बिट थी उसकी डी ऑर्बिटल यूज हुई, उसकी वजह से इसको हमने क्या बोला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हुआ और जो बाहर वाली डी ऑर्बिटल थी वो यूज हुई, उसकी वजह से इसका दूसरा नाम हमने क्या दिया था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमने क्या नाम दिया था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनदर थिंग, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट 24 बाय 4 में। समझ में आ गया। ओके, आपको घर पे कौन सा ट्राई करना है, FeCN6 -3 Fe F6 -3, वो दोनों आपको ट्राई करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, CONH3 6 टाइम्स +2 यानी कि हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 2 आयन, कोबाल्ट +2, एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आर्गन कंप्लीट 3d7 4s0 4p0 4d0। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन कंप्लीट 3d7 4s2 यानी कि +2 में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नाउ 3d7 1 2 3 4 5 6 7 4s 4p 4d। ध्यान से सुनना, एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, इसकी रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ कहाँ जाएगा, वो तो कहीं भी नहीं जा सकता। तो फिर हमको एम्प्टी ऑर्बिटल एक ये मिली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, DsP3d कुछ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इंटरनल डी ऑर्बिटल भी यूज हुई और आउटर डी ऑर्बिटल भी यूज हुई, विच इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल डी ऑर्बिटल भी यूज हुई और आउटर डी ऑर्बिटल भी यूज हुई, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, DsP3d हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना,
एमोनिया एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो क्या करेगा, जो 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके 4d ऑर्बिटल में रीअरेंज करेगा। किसकी ऑर्बिटल में रीअरेंज करेगा, 4d ऑर्बिटल, यानी कि क्या हो जाएगा, आर्गन कंप्लीट 3d6 4s0 4d0 सॉरी 4p0 4d1 3d6 ये हो गया, ये 4s, ये 4p और ये 4d। तो मैं ये ऑर्बिटल खाली मिल गई, 1 2 3 4 5 6 सारे एमोनिया यहाँ पे फिट हो गए। क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्पिन वैल्यू भी कैसी आई, सिर्फ प्लस और माइनस 1 सॉरी प्लस और माइनस हाफ। इंटरनल डी ऑर्बिटल यूज हुई, उसकी वजह से हमको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर शेप क्या आएगा, ऑक्ट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री। एक अनपाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और म्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 1 + 2 अंडर रूट 3 बोर में। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। नाउ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d ऑर्बिटल ट्रांसफर टू 4d ऑर्बिटल, यानी कि वो पहले कौन सी ऑर्बिटल में था, 3d में, अभी वो कौन सी ऑर्बिटल में है, 4d में। यानी कि वो पहले कौन सी ऑर्बिट में था, 3, अभी वो कौन सी ऑर्बिट में है, 4। यानी कि डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया या कम हो गया, तो बढ़ गया। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी या फिर अट्रैक्शनल फोर्स था वो कम हो गया। तो ये क्या सोचेगा कि चलो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देते, वो भी इजीली, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं। इट मींस CONH3 6 times +2 can easily transfers or donate electron. If it donates electron, it gets oxidized. That's why it act as a reducing agent. Listen to me carefully. पहले क्या था, वो 3d ऑर्बिटल में था, अभी 4d ऑर्बिटल में। 4b ऑर्बिटल में है, यानी कि उसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक्ट कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। नाउ फॉर CONH3 6 times +3 क्या नाम आएगा, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन। यहां पे तो कोबाल्ट +3 है, आर्गन कंप्लीट 3d6 पहले से ही है, 4s0 4p0 4d0 3d6। एमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, रीअरेंजमेंट होगा, 3d6 कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 4s और ये 4p। यहाँ पे एमोनिया रख दिया, 1 2 3 4 5 6, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी वजह से डायमैग्नेटिक इन नेचर as well as mu is 0 and it is octahedral in shape 90 degree. We can call it low spin complex or inner orbital complex. Fine. लेकिन यहां पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सारे पैड है, वो सारे 3d ऑर्बिटल में है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे। अगर CONH3 6 times +3 cannot lose the electron, they cannot oxidize or they cannot act as a reducing agent। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा,
वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। यानी कि इफ दे आस्क from CONH3 6 times plus 2 and from CONH3 6 times plus 3, which of the following is a strong reducing agent? It means this one is strong reducing agent because they can release electron from 4d orbital, they can oxidize and they can reduce another compound. Fine. Finally, we can understand there is so many possibilities, so many factors which are affecting rearrangement of electron or strength of ligand. Okay, so you have to learn all the things. Now, at home, you have to learn about you have to study about FeH2O 6 times plus 3. आपको याद रखना है Fe+2 होगा तो एमोनिया है, वीक फील्ड लिगेंड, चार्ज बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, Fe+3 में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वैसे ही कोबाल्ट+2 में H2O वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट+3 में H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, आपको ये ट्राई करना है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। ओके, आपको ये भी घर पे ट्राई करना है। सबका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है। ओके, दूसरा भी मैं आपको लिख के देता हूं। Na+2 है तो F- वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर Na+4 है तो F- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। समझ में आ गया? ये सारा हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है। अनदर लास्ट जो मेरा लेक्चर गया था उसमें मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था कि आपको सब ट्राई करना है। अगर आप मुझे रिस्पांस करेंगे तो मैं आपको नई शीट भेजूंगा जिसके अंदर आपको IUPAC नाम की प्रिपरेशन के लिए 25 और 30 दूसरे IUPAC नाम मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, मैंने इसके आगे जो 3-4 एग्जाम्पल दिए वो और ये वाले, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन लिख के मुझे भेजने हैं। आप मुझे भेजोगे, उसके बाद मुझे पता चला गया कि आप कुछ वर्क कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या होगा, मैं ही ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। आई होप कि आप इस सिचुएशन को समझो, इसकी सीरियसनेस को समझो और आगे बढ़ते रहो। ओके, अगर आपको किसी भी जगह पे दिक्कत हो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, वो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्पफुल हूँगा। ओके, थैंक यू।